مادھوپور وادی میں شام اتر آئی تھی۔ سفیدہ، شہتوت اور خوبانی کے اونچے اونچے پیڑوں سے نیچے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ یہ وادی بلند پہاڑوں کے دامن میں ڈلوانی علاقے میں تھی۔ کہیں کھلے کھیت تھے اور کہیں ایک ہی جگہ بہت سے مکانات بنے ہوئے تھے۔ وادی میں درختوں کی بہتات تھی، کہیں سبز ٹیلے موجود تھے، پھر ایک طرف خشک چٹیل پہاڑ تھے۔ مادھوپور کے درمیان ایک چھوٹا سا بازار تھا، جہاں سے ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں مل جایا کرتی تھی۔ جو نہیں ملتی تھی ان کے لیے طویل فاصلہ طے کر کے آگے جانا پڑتا۔ شام کے ایسے پہر مادھوپور کے ایک بلند سے ٹیلے پر بنے گیسٹ ہاؤس کے پورچ میں ایک سرکاری گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی میں 3 افراد سوار تھے، 2 مرد اور ایک نوجوان عورت۔ ایک مرد جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ادھیڑ عمر کا تھا، دوسرا مرد ایک نوجوان تھا، اس کا نام سلمان احمد تھا اور جنگلی حیات کے سرکاری محکمے میں آفیسر تھا۔ ساتھ میں اس کی بیوی ہنا تھی، جبکہ ادھیڑ عمر کا آدمی ان کا ڈرائیور تھا اور خدمت گار بھی۔ وہ سب ضلعی ہیڈ کوارٹر سے قریباً 2 گھنٹے کا پہاڑی سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ بہت عرصہ پہلے سڑک پر تارکول بچھایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بہت شکستہ ہو گئی تھی۔ پھر کسی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر نیا تارکول بچھائے۔ مادھوپور کے پہاڑوں پر ایک خاص سن پایا جاتا تھا، اس کی نسل معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ غیر قانونی طور پر اس نایاب ہرن کا شکار تھا۔ آئے دن سوشل میڈیا پر اس کے شکار کی خبریں اور تصویریں گردش کرتی رہتی۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے خلاف عام لوگ، سماجی تنظیمیں بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی تھیں۔ ایسے میں سلمان احمد کو محکمے کی طرف سے یہ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہاں کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر جو عوامی تنظیم بنی ہوئی ہے، ان کے اشتراک سے کوئی موضوع لائحہ عمل مرتب کر کے ان شکایات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مادھوپور میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کا دفتر موجود تھا۔ افسروں کی سہولت کے لیے ایک پرفضا مقام پر گیسٹ ہاؤس بھی بنایا ہوا تھا۔ ایک گیسٹ ہاؤس بلند ٹیلے پر واقع تھا، وہاں سے دور تک وادی کسی خوبصورت تصویر کی طرح نظر آتی تھی۔ ان کی شادی 1 سال قبل ہوئی تھی۔ اتفاق سے 3 دن بعد ہی ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ان کا ارادہ شہر میں ہی بھرپور طریقے سے اسے منانے کا تھا، مگر سرکاری طور پر سلمان احمد کو 1 ہفتے کے لیے مادھوپور جانے کا حکم ملا تو ہنا بہت مایوس ہوئی۔ بہت خونی مارکوں، دشواریوں اور تکالیف کے بعد ان کی شادی ممکن ہو سکی تھی۔ وہ اپنی شادی کی پہلی سالگرہ شاندار طریقے سے منانا چاہتے تھے، لیکن سرکاری حکم نامے نے ان کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ 3 بیڈ رومز کے گیسٹ ہاؤس کی وہ عمارت اس وقت خالی تھی۔ ان تینوں کے علاوہ گیسٹ ہاؤس میں ایک ملازم تھا، وہ چوکیدار تھا اور ہانسواں بھی۔ اگلی صبح سلمان اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھانے جنگلی حیات کے دفتر چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے بتایا کہ کوشش کرے گا وہاں سے جلد فارغ ہو کر آ جائے، پھر کہیں گھومنے جائیں گے۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آئے تھے۔ سلمان نے بتایا تھا کہ مادھوپور کی وادی حسن فطرت کا حسین مرقع تھی۔ یہاں جھیلیں تھی، سرسبز پہاڑ تھے، دریا کنارے کا خوبصورت سما تھا، سب سے بڑھ کر آزادی تھی۔ ایسی آزادی جس کے لیے وہ پورے 1 سال سے ترسے ہوئے تھے۔ ان کے دل کی زمین میں جب سے محبتوں کا پھول کھلے تھے، انہیں نفرت، دشمنی اور پریشان حالی کے کانٹوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ بہت دکھ اٹھانے کے بعد اب کہیں جا کر انہیں آسودگی نصیب ہوئی۔ ایسے میں وہ مادھوپور کی وادی میں پچھلے سارے غم بلا کر سکون کے چند دن گزارنا چاہتے تھے۔ ہنا گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں کھڑکی کے پاس آرام کرسی پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس طرف وادی کے عقبی حصے میں گہری کھائیاں تھیں، جن میں پاپولر، کیکر اور اخروٹ کے بلند پیڑ تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بہت ہی بلند و بالا خشک اور چٹیل پہاڑ تھے۔ ان کی چوٹیوں پر کہیں کہیں گزشتہ سردیوں کی برف اب بھی موجود تھی۔ صبح کی نکھری ہوئی دھوپ ان برفیلی چوٹیوں سے لپٹ کر روشن روشن سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اب موسم بدل رہا تھا، جاتی گرمیوں کے دن تھے۔ ایسے میں نئی سردیوں کی برف پھر ان پہاڑوں پر جمنے والی تھی۔ ہنا گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے باہر یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسی دم بہت سے پرندے ڈار کی شکل میں دور سے دوڑتے ہوئے آ کر وادی کی ان گہرائیوں میں موجود بلند پیڑوں میں غائب ہو گئے۔ وہ ان پرندوں کی طرف دیکھتی رہی۔ آزاد فضاؤں میں ان کی اڑان، ان کے سوچ کے تیور بھی جیسے پرواز کرتے ہوئے پیچھے جانے لگے۔ وہ اس کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھتے سفر طے کرتے ہوئے 1 سال پیچھے چلے گئے، جب اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں ایک طغیانی آ گئی تھی۔ 1 سال پہلے وہ یہاں سے بہت دور اپنے گاؤں میں تھی۔ یہ گاؤں نانگا پربت کے دامن میں واقع تھا۔ ان کے گاؤں کے بہت ہی قریب ایک گلیشیئر تھا، جو اوپر نانگا پربت کے برفزاروں سے ٹوٹ کر نیچے آتا تھا، پھر وہاں سے پگھلتا ہوا پہاڑی نالے کے صورت میں نشیب کی طرف بہتا تھا۔ وہاں نشیب کی آبادیوں کو سیراب کرتا ہوا دریائے سندھ میں جا ملتا تھا۔ گاؤں کے مغرب کی جانب پہاڑوں پر گھنے جنگلوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں صنوبر، دیودار اور شاہ بلوط کے درخت کثرت سے تھے۔ گاؤں کی آبادی 40-50 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ لوگوں کے مزاج اور بود و باش میں سخت قبائلی رسوم و رواج پائے جاتے تھے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولوی کے بعد ان رسوم و رواج کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہنا ابھی 10 سال کی تھی کہ گاؤں سے نکل کر بڑے شہر میں آ گئی۔ وادی پر پھیلے ہوئے پہاڑوں سے بہت نیچے، بہت فاصلے پر جہاں شہر کراکرم تھی، جس پر 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد ضلع چلاس پہنچے تھے۔ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔
वहाँ हिना का चचा सरकारी मुलाजिम था, इसे सरकारी मकान भी मिला हुआ था, गाँव में प्राइमरी स्कूल था। हिना ने अपने गाँव में 5वीं तक तो पढ़ा था। वहाँ की हर लड़की की तरह इसका भी तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया, क्योंकि इन इलाकों में बच्चियों को पढ़ाने का रवाज अव्वल तो था नहीं, अगर किसी ने पढ़ाया भी तो वाजबी सा प्राइमरी स्कूल था, जिसमें एक मौलवी साहब को सरकार ने उस्ताद भर्ती किया था। वो बच्चों और बच्चियों को इब्तदाई क्लासें पढ़ाया करता था। कुल मिलाकर 20-22 तलबा होते थे, इसलिए मौलवी साहब के लिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी। बाद में बच्चियों की तादाद बढ़ गई तो हुकूमत ने करीबी इलाके से एक पढ़े लिखे नौजवान को उस्ताद भर्ती करके वहाँ भेज दिया। 5वीं तक पढ़कर हिना भी आम लड़कियों की तरह घर में बैठ जाती, मगर इसके अब्बा ने रवायत तोड़ दी। इसे चल्लास के शहर में मौजूद अपने भाई के पास भेज दिया। वहाँ लड़कियों का हाई स्कूल था। गांव में बड़े और इसके घर वालों ने बहुत गम और गुस्से का इजहार किया। इसके पीछे एक तरफ हसद था कि इनकी बच्चियाँ 5वीं तक पढ़ी नहीं थी, दूसरी बात यह कि हिना बड़े ताया के बेटे जमशेद से मंसूब थी। हिना की पैदाइश से चंद दिन बाद ही ताया ने अपने 5 साल के बेटे के साथ इसका रिश्ता पक्का कर दिया था। वहाँ के रवाज और ख़ानदानी रवायात के मुताबिक इसके अब्बा के लिए इनकार की गुंजाइश ही न थी। इस वजह से भी हिना को चल्लास भेजने के फैसले पर उन्होंने अना का मसला बनाकर खूब बातें सुनाई, लेकिन हिना का बाप पूरे एतमाद और हौसले से उनके आगे डट गया। हिना का बाप अनायत खान इलाके का नंबरदार था। कबायली इलाकों में ये बड़े दबदबे वाला मनसब होता है। छोटे बड़े जरगों और फैसलों में नंबरदार का अहम किरदार होता है। ऐसे में इसे अपनी बात मनवाने में दूसरों की निस्बत आसानी होती है। इसने अपने बड़े भाई और इसके घर वालों को पूरे एतमाद से मनवाया। अब वो 10वीं पास कर चुकी थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर पूरे दियामर में लड़कियों का कॉलेज मौजूद नहीं था। इसके लिए वहाँ से बहुत दूर बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन अनायत खान के लिए अब ये मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा कदम उठा ले। इससे आगे पढ़ाने में दरपेश मसाइल का सामना करने की अब इसमें हिम्मत नहीं थी। हिना ने बहुत एहतजाज किया। चिल्लास वाले चचा की बेटी का भी हवाला दिया, जिसने इसके साथ मैट्रिक पास किया था। अब वो आगे पढ़ने गिलगित जाने वाली थी, मगर नंबरदार अनायत का हौसला जवाब दे चुका था। इसने 2 टोक अंदाज में कहा, ज़्यादा जिद मत करो, मैंने पहले ही इलाके के रवाज के बरक्स तुम्हें 10वीं तक पढ़ाया है, तुम्हारे ताया और इसके घर वालों की बातों का सामना किया है। अब गिलगित जाकर कॉलेज में पढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। इसका रिश्ता पैदाइश के इब्तदाई दिनों में ही ताया के बेटे जमशेद से तय हुआ था। जमशेद की तालीम तो बस वाजबी सी थी। इसने 5वीं तक पढ़ा था। इसके बाद शहर जाकर छोटे मोटे धंधे करता था, फिर गाँव आकर लकड़ियों का कारोबार शुरू किया। इसका पूरा ग्रोह था। जंगल से गैर कानूनी तौर पर तामीराती लकड़ी काट कर लाते थे और चोरी छुपे शहर ले जाकर बेचते थे। हिना मैट्रिक के बाद गाँव वापस आ गई तो सबको ख्याल आया कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। बड़े ताया के घर वालों की तरफ से भी ऐसा पैगाम आ गया। फिर सरगोशियाँ उभरी, बंद दरवाजों के पीछे चुपके चुपके फैसले होने लगे। फिर बात पक्की हो गई कि आने वाली सर्दियां खत्म होते हिना और जमशेद की शादी कर दी जाएगी। हिना नहायत दिलकश हदोहाल की लड़की थी। गंदमी चेहरे पर अमावस की स्याह आंखें और उसके हुस्न को 4 चांद लगाते थे, जबकि जमशेद आम सी शक्ल सूरत और खुरदरे लबो लहजे के साथ इसके जोड़ का बिल्कुल नहीं लगता था। वो अपने दिल में जमशेद के लिए ज़रा भी प्यार पैदा नहीं कर पाई। वहाँ के रिवाज के मुताबिक वो बहुत कम एक दूसरे के सामने आते थे। कभी ईद या फिर खानदान में कोई शादी हो तो एक आध झलक देखने का मौका मिलता था। इस कभी कभार की मुलाकात के बाद इसके दिल में नागवारी और दुख के बादल छा जाते। नरम नाजुक थी, बहुत ही दिलकश थी। इस वादी की आम लड़कियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, मगर बड़ों के फैसले के मुताबिक जमशेद जैसे कम रूह और अनपढ़ की शरीके हयात बनने वाली थी। वो बड़ी देर से गेस्ट हाउस के कमरे की खिड़की के पास बैठी रही। इसकी निगाहें खिड़की से बाहर दूर तक फैले हुए मनाजर में उलझी हुई थी, मगर वो तसव्वुर की रात पर बैठकर सैकड़ों मील दूर अपनी वादी में पहुंच चुकी थी, जहाँ इसका बचपन, बड़ी जवानी का सुहाना मौसम और फिर जबर बगावत और किसी को पा लेने की खातिर आग का दरिया पार करने का होलनाक अरसा गुजरा था। इसका तस्वर माजी की कुछ मजीद औराक पलट देता, लेकिन इस वक्त दरवाजे पर किसी की दस्तक ने इसे हाल में लौटा दिया। इसके दिलो दिमाग पर माजी का होलनाक का सेब इस तरह छाया हुआ था कि इस जरा सी दस्तक से इसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। बहुत दूर आकर भी पुराने अंदेशों ने इसे अंदर से लर्जा दिया। वो आवाज़ देकर पूछना चाहती थी। इसी वक्त कमरे से बाहर सलमान की आवाज़ आई। वो इसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। इसने तमानियत भरी सांस ली, फिर तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सलमान कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं वक्त से पहले ही दफ्तर का काम छोड़कर आ गया हूँ। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, नहीं, आप वक्त पर आए हैं, मगर क्या करूँ, अकेले मुझे धड़का लगा रहता है। अब भी आपने दस्तक दी तो मैं बुरी तरह डर गई थी। सलमान अहमद इससे लिपटते हुए मोहब्बत से बोला, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है आप माजी को भूल जाओ। इन बेरहम मौसमों से हम बहुत दूर आ गए हैं। इस पूरे साल में हमने जो दुख उठाए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है उनके साए हमारे ऊपर से हट गए हैं। वो इनके सीने से लगकर आंखें बंद करते हुए बोली, हम दोनों ने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है। अब भी मेरे अंदर इतना हौसला है कि दुश्मनों की आंख में आंख डालकर आपके साथ खड़ी रहूं। बस कभी कभी एक खौफ सा मुसल्लित हो जाता है, मुझे लगता है जैसे मैं आपसे बिछड़ जाऊंगी। ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ मेरी जान। मुश्किल दिनों से गुजर कर हम आए हैं। हमारी मोहब्बत ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी है। अब आइंदा भी मोहब्बत की ताकत हमें जुदा होने से बचाएगी। इस वक्त सलमान का ड्राइवर शाबान दस्तक देकर अंदर आया। सर, गाड़ी पोर्च में खड़ी कर दी है, आप चाहें तो बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। सलमान बोला, चचा हम 10 मिनट में बाहर आते हैं। फिर हिना से मुखातिब हुआ, हिना तुम तैयार हो जाओ, बाहर घूमने के लिए जाते हैं। माधोपुर किसी शायर के ख्याल की तरह हसीन है, तुम बहुत लुत्फ उठाओगे।
हिना को वो शाम कभी नहीं भूलती जब गांव के करीब के जंगल से शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। आमिर की इन वादियों में फायरिंग की आवाज़ जैसे कोई चंबे की बात नहीं थी। कबायली तमद्दन की हामिल इन वादियों में बंदूक का इस्तेमाल मर्दों के लिए फ़ख्र की बात थी। अपनी ताकत के इजहार के लिए मुखालिफों पर अपनी दाग बिठाने के लिए बंदूक को बहुत अहमियत हासिल थी। बंदूक कल्चर का एक भयानक पहलू भी था। इसका आम इस्तेमाल मखसूस नुमाइश के लिए नहीं होता था, बल्कि मामूली झगड़ों का अंजाम भी अक्सर आतिशी हथियार के बेदरीन इस्तेमाल पर होता। फिर इंतकाम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता जो नस्ल दर नस्ल चलता। कई कीमती जानों को भी इसकी भीड़ चढ़ जाना पड़ता। इस शाम थलचून के करीब गांव से बुलंद होती हुई फायरिंग की आवाज़ ने गांव में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ा दी। सब धड़कते दिलों और खौफ भरी नजरों से किसी अफसोसनाक खबर के मुंतजिर थे। हिना का अब्बा घर में नहीं था। वो रात गए वापस आए। उसने बताया कि जंगल में फायरिंग लकड़ी के स्मगलर्स और महकमा जंगलात के अमले के बीच में हुई थी। मुखबर की रिपोर्ट पर महकमा के आला अफसरान ने अपनी फोर्स के साथ अचानक छापा मारा। टिम्बर माफिया के कारिंदों ने खुद को बचाने के लिए फॉरेस्ट फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। फॉरेस्ट फोर्स भी हथियारों से लेस थी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग होने लगी। लकड़ी के स्मगलर्स बुलंदी पर थे। वो फायरिंग करते हुए पहाड़ों और जंगलों में गायब हो गए। इस फायरिंग से किसी की जान नहीं गई, मगर महकमा जंगलात के एक अफसर की टांग में गोली लगी है। इसके अब्बा ने बताया वो ज़ख्मी फॉरेस्ट ऑफिसर इस वक्त इनके मेहमान खाने में मौजूद है। इसे फौरी तिब्बी इमदाद दी गई है। कल सुबह इस शहर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। गाँव से शहर जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। 2 घंटों के पहाड़ी सफर के बाद वो शहर आए कुराकरम पहुंच पाते। वहां से गाड़ी के जरिए आगे सफर मुमकिन होना था। गाँव और आसपास की वादियों के लोग अक्सर ये सफर पैदल ही करते। किसी हंगामी सूरत में घोड़े या खच्चर का इस्तेमाल किया जाता। फॉरेस्ट ऑफिसर जख्मी होने की वजह से घोड़े पर सवार होने के काबिल नहीं था, इसलिए इसे मुनासिब तिब्बी इमदाद देकर नंबरदार अनायत खां के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इनके रिहायशी मकान से ज़रा हटकर 2 कमरे अलग बने हुए थे। अनायत खान से मिलने शहर या दूसरे इलाके से मेहमान आते थे। वो इसी मेहमान खाने में ठहराए जाते। इसने अपनी बीवी और हिना से कहा कि ज़ख्मी ऑफिसर के लिए देसी मुर्गी का शोरबा तैयार कर लें। दीगर मेहमानों के लिए भी खाना बनाए। थोड़ी देर बाद वो खुद आएगा या किसी को और को भेज देगा। ये बताकर वो जाने लगा। फिर पलट कर बोला, सब कहते हैं जमशेद भी उनमें शामिल था जिन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर और इसके साथियों पर फायरिंग की थी। अगर ये सच है तो इसने बहुत बड़ी गलती की है। गैर कानूनी लकड़ी काटने के अलावा महकमा के आला अफसर को जख्मी करने का जुर्म भी इसके खाते में डाल दिया जाएगा। तो आज नहीं तो कल जरूर गिरफ्तार होगा, हुकूमत से टक्कर लेगा और बच नहीं सकेगा। हिना पहले ही से जानती थी इसका मंगेतर जमशेद लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। इसके दिल में जमशेद के लिए कोई जज्बा नहीं था, मगर बुजुर्गों ने नाता जोड़ दिया था। इस हवाले से जब अब्बा ने जमशेद के मुलव्वस होने की बात बताई तो वह फिक्रमंद हो गई। हिना के 2 भाई थे। इससे बड़ा भाई वहाँ से दूर बहुत एबटाबाद के कॉलेज में पढ़ता था, जबकि छोटा गाँव में ही 5वीं का तालिब इल्म था। माँ बेटी ने मिलकर खाना बनाया और ज़ख्मी ऑफिसर के लिए शोरबा तैयार किया। बड़ी देर इंतजार किया। मेहमान खाने से नंबरदार अनायत खुद आया, ना किसी और को भेजा। मेहमान खाना ज़्यादा फासले पर नहीं था। रिहायशी मकान से मुत्तसिल इनके 2 खेत थे। इनके आहर में अलग 2 कमरे बने हुए थे। इस वक्त रात का इब्तदाई पहर था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर फैले घरों के अंदर 100 वाट के बल्ब चल रहे थे, जिनकी रोशनी बस मकान के अंदर तक महदूद थी। हिना का भाई भी कमसिन था। इतना सारा खाना अकेले ले जाना इसके बस में नहीं था। जब बहुत देर होगी तो वहाँ के कहने पर वो छोटे भाई के साथ खाना लेकर मेहमान खाने की तरफ गई। दरवाजे के पास चचा फ़कीरुल्लाह नजर आया। वो हाथ में बाल्टी लिए मेहमान खाने से बाहर निकल रहा था। चचा फ़कीरुल्लाह इनका दूर पार का रिश्तेदार था। नंबरदार अनायतुल्लाह खान का खिदमतगार था। मेहमान खाने की देखभाल करता था, इनके खेतों की निगरानी करता था, जिसके एवज नंबरदार अनायत से अनाज और दीगर ज़रूरत की चीज़ें फराहम करता था। हिना और इसके भाई को देखकर वो बोला, हिना बेटी अच्छा हुआ तुम खाना लेकर आ गई। नंबरदार साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि घर से खाना लेकर आऊँ, लेकिन मेहमान आने में इतना मसरूफ रहा कि आने में देर हो गई। हिना बोली, चाचा फ़कीर अब्बा अंदर मौजूद नहीं है। वो बोला, नंबरदार साहब और बाकी मेहमान तुम्हारे ताया के घर गए हैं, वहाँ जिरगे के लिए इकट्ठे हुए हैं और तुम्हें इल्म भी होगा जमशेद भी इस वाक़े में मुलव्वस है। अभी कुछ देर में वापस आने वाले हैं। तुम ये खाना अंदर रख दो, मैं सामने कुएं से पानी लेकर भी आता हूँ। हिना झिझकती हुई मेहमान खाने में दाखिल हुई। बैरूनी दरवाजे के सामने छोटा सा आंगन था। इसके साथ ही लकड़ी की छत का बरामदा था। वहाँ एक सीध में 2 कमरे बने हुए थे। बरामदे में बल्ब जल रहा था। इसकी जर्द रोशनी खुले सहन में फैली हुई थी। हिना ने अपने साथ लाया हुआ खाना बरामदे में मौजूद टेबल पर रख दिया। फिर बाई का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ी। इसी वक्त साथ वाले कमरे में भी किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसकी आवाज़ में तकलीफ थी। वो पूछ रहा था, कौन है, अंदर आ जाए, इसे पानी दे दे। हिना ने बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। चचा फ़कीर अल्लाह पानी नहीं लेकर आया था। पानी का कुआं इनके मकान और मेहमान खाने के दरमियान बना हुआ था, इसलिए इसकी वापसी में कुछ वक्त लग सकता था। हिना एक ज़रा हिचकिचाई, फिर हिम्मत से काम लिया। कमरे के दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। इस नीमवा दरवाजे के बिल्कुल सामने एक पलंग मौजूद था। इसने डरते डरते जांग कर देखा। पलंग पर एक नौजवान लेटा हुआ था। कमरे में मौजूद बल्ब की रोशनी में वो सीने तक चादर ओढ़े नीम दराज था। हिना का ख्याल था कि वह ज़ख्मी ऑफिसर कोई उम्र रसीदा शख्स होगा, मगर वो तो बड़ा बांका सजीला नौजवान था। इसके चेहरे पर तकलीफ के असरात थे, लेकिन उजली पेशानी और गहरी आंखों के साथ वो नौजवान जैसे बांध लेता था। हिना एक सानिया को यकटक इसे देखती रह गई।
वो ज़ख्मी ऑफिसर भी बड़ी महवियत और हैरत से इसे देख रहा था। वो आंखें पटपटा के यूं से घूर रहा था जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हिना एकदम होश में आ गई, भाई को इशारा किया। भाई ने कमरे के कोने में रखी तपाई पर मौजूद जग में से ग्लास में पानी डालकर ज़ख्मी ऑफिसर को दिया। इसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए ज़ख्मी ऑफिसर ने पलट कर इसे देखा, बहुत नरमी से मुस्कुराया, बहुत प्यार से इसके भाई का शुक्रिया अदा किया। इसी वक्त चचा फकीर अल्लाह भी बाल्टी में पानी भर कर लिया है। कमरे से मुتصل बाथरूम में बाल्टी छोड़कर बाहर आया, फिर कहा, सर आपके लिए नंबरदार साहब के घर से खाना पका है, आप भी खाएंगे या बाकी मेहमानों का इंतजार करेंगे। ज़ख्मी ऑफिसर ने एक बार फिर पलट कर हिना की तरफ देखा। वो भाई का हाथ पकड़कर वापस जाने लगी थी। इस वक्त ज़ख्मी ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी, तुम नंबरदार साहब की बेटी हो? हिना के बढ़ते कदम रुक गए, दिल धक से रह गया। इसके मुंह से कोई बात ना निकल सकती, बस धीरे से इस बात में सर हिला दिया। वो बोला, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी, तुम्हारा शुक्रिया। हिना शर्म और घबराहट भी महसूस कर रही थी। जिस समाज की वो लड़की थी, इसमें किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी इंतहाई मायूब बात थी। वो हाफ की कैफियत में बोली, आप ज़ख्मी हालत में हमारे घर में आए हैं, आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। ये कहकर वो अपने भाई का हाथ थाम कर मेहमान खाने से बाहर निकले। वहाँ रात का अंधेरा पहरे दिए खड़ा था। 2 खेत दूर इसके रिहायशी मकान में जलते बल्ब में इतनी सकत नहीं थी कि दोनों मकानों के बीच के रास्ते को भी रोशन कर सके, मगर हिना को इस अंधेरे में किसी रोशन चांद की तरह ज़ख्मी ऑफिसर का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों की चमक, चेहरे की कशिश और गुफ्तगू की नरमी हिना के दिल में बैठी गुदगुदी कर रही थी। खेतों के बीचों बीच पगडंडी पर चलते हुए वो बार बार पलट कर मेहमान खाने की तरफ देखती जा रही, जैसे वो वहां से पुकारेगा। इसका दिल अचानक लड़खड़ाने लगा। वो नहीं जानती थी कि ये किस तरह संभल पाएगा। पता नहीं वो ऐसा चाहती भी थी कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में मालूम होना था कि दिल जो पहली बार लड़खड़ाया था, ये जिंदगी की कितनी ही ठोकरों का पेश हैमा साबित होने वाला है।